जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी हैरानगी की बात है कि बांग्लादेश की जमात इस्लामी की पार्टी के जो हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश जो है उसमें खातून हमारी जमात को लीड नहीं कर सकती और ना ही मुल्क को लीड कर सकती है। हालांकि बांग्लादेश के अंदर दो वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं, दो वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि खवातीन जो है वो रूल नहीं कर सकती? और आप अगर ये इनकी बात सुनिएगा, मतलब बड़ी, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। और फिर ये, मतलब ये उसी पता नहीं कौन से ज़माने में रहते हैं। दे डोंट लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। भाई आप लोग ये तो कहो, आप अलाउ तो करो। आना ना आना तो लात की बात है ना। वो उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये सुनिएगा जरा। Head of the Jamaat, could a woman become the head of the Jamaat, take your place one day? It's not possible. It's not possible because Allah made everyone in its own entity. Because you will never be able to bear a child. We will never be able to feed our breast to a child. This is God given. And there are some differences between men and women. What Allah made, Yes. we cannot change it. I'm not able No to one can understand. change it. First of all, not all women necessarily want to be or will be mothers. But even if they are, even if they're raising children, why can't they head an organization like the Jamaat? I'm not able to understand. There's some limitation. In some cases, they will not be able to perform their duties. They will be limited. Physical in what way? inconveniences, you know. Already, we cannot deny it. I actually don't know. Why you don't know? A mother when will give birth to a child, Yes. how will perform the duty? It's possible? Never. Allah knows everything best. ये इस बंदे को ये नहीं पता, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है, आसफ अली जरदारी, आपको पता है उनकी वाइफ सबक प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहिबा, शी गेव अ बर्थ टू द बेबी एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड शी ब्रोक द टैबू। ये तो कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के अंदर खातून वजीर आजम रही है, खातून वजीर आजम पाकिस्तान के अंदर रही है। वन थिंग। सेकेंडली, आप सुने इस चीज को, दे हैव नो आइडिया। इनको कोई आइडिया ही नहीं है, इनको कोई आइडिया ही नहीं है। और वो सिर्फ वजीर आजम नहीं रही, उन्होंने बच्चा, उनका बेटी पैदा हुई, जो बिलावल भुट्टो जरदारी से बड़ी सिस्टर है उनकी, वो बेटी पैदा हुई एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो जो जब थी। और उन्होंने ना सिर्फ शी वॉज एबल इनफ टू रन द गवर्नमेंट, शी वॉज एबल इनफ टू गो टू द फैमिली वे, एंड शी वॉज एबल इनफ टू रन द एंटायर कंट्री। और ये कह रहा है भाई कि वो मौलवी साहब कि जो खातून बच्चा पैदा करती है वो हुकूमत नहीं चला सकती। भैया आपको किसने कहा है? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? कौन से हजार साल? आप में और तालिबान में भाई फिर क्या फर्क रह गया? सुनिएगा। It's quite remarkable you're saying this in a country where you've had women prime ministers for the past 3 decades. We did not protest them. Already I said we are not disrespectful. Yes. But if you look to the world, Yes. those who are upgrade world, how many ladies came forward? Fascinating. You're saying that they can't be the head of an organization while they can be the prime minister of a country of what, 160, 70 billion people? So clearly women are capable of leadership positions. Even most of the country in the world did not consider this feasible. This is the reality of the world. Many countries have had women leaders, sir, Few including countries, yours. Few countries. It's interesting because you were actually part of a government with the BNP. You were part of an alliance government. Begum Khalida Zia, a woman, was the prime minister. Yes. You think she did a good job? Yes. As prime minister? It's not our decision. It's their party decision. Okay. We should respect this party opinion. But do you think we that she- cannot impose anything upon anyone? Mr. Rahman, it's not just gender rights. The worry is that the rise of the Jamaat also poses a real threat to cultural diversity, to media. ये चीज है, ये मौलवियों का प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट ग्रो अप। दे डोंट ग्रो अप। इनके अंदर इस चीज को पता ही नहीं है कि मॉडर्न दुनिया किस तरह की है। ये किस तरह की सोच लेके बैठे हुए हैं, ये किस तरह की सोच लेके बैठे हुए हैं।
और ये किस तरह का जो है वो बात करते हैं, मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। कौन दुनिया में ऐसा होगा, कौन दुनिया में ऐसा होगा? मतलब मैं तो हैरान हूं कि ये कैसे ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये कैसे ये कह लेते हैं सब कुछ। हद हो गई है। आपके लिए बड़ी आसानी से आप ये कह देते हैं कि नहीं भाईजान, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है इनके साथ, हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, हम तो इनके साथ ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते। मतलब दिस इज सो शेमफुल, फ्रैंकली ट्रस्ट मी, दिस इज सो शेमफुल कि एक जमात जो है उसका बंदा ये कहे कि जी वो खातून इस काबिल ही नहीं है, और फिर खालिदा जिया के साथ हुकूमत की है, वो उस वक्त पावर एंजॉय कर ली उनकी एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कह रहा वो जी हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, वो तो हमने पावर एंजॉय की। सुने जरा, ये खतरा है। दैट इज दिस रेडिकल इस्लामिक जो इस्लामिक फोर्सेस हैं, व्हेन दे हैव सच काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स व्यू ऑफ इस्लाम, ठीक है, इनको ये नहीं पता कि 7वीं सदी में द लेडी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मैरिड टू अ वुमन एंड शी वाज अ बिजनेस वुमन, शी वाज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। इस बंदे को ये नहीं पता दैट द प्रॉफिट मैरिड टू अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर से उसने शादी की। आपको ये नहीं पता? कारी साहब आप कौन सी दुनिया में, ये तालिबान वाली सोच है ना, तालिबान भी यही कहते हैं। वो अब तालिबान का जो वर्ल्ड व्यू है आप अगर उसको देखें तो इनके वर्ल्ड व्यू में क्या फर्क है? तालिबान भी यही कहानी सुनाते हैं। तालिबान कहते हैं जनाब खवातीन को तो उन्होंने मेल गार्डियन में डाल दिया। तालिबान कहते हैं कि खातून जो है वो अपने हस्बैंड से लड़के अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती, अगर वो अपने माँ बाप के घर गई तो उसको सजा दी जाएगी। तालिबान ये कहते हैं कि खातून जो है वो एक सब्जेक्ट है, वो सिर्फ उसके पास कोई राइट नहीं है, उसको जो मर्द कहेगा उसने करना है, ना वो पढ़ने जा सकती है, ना वो लिख सकती है, ना वो बात कर सकती है, ना वो अपने हकूक की वो कुछ भी नहीं कर सकती यारो, वो कुछ भी नहीं कर सकती। दैट इज अ वर्जन एंड व्यू। आप यहां से अंदाजा लगा लो यार, आप यहां से अंदाजा लगा लो कि क्या है, सोच क्या है, ये सोच क्या है, और ये किस तरह का माइंडसेट है। आई एम अनएबल टू गेट इट, आई एम अनएबल टू गेट दिस एंटायर पर्सपेक्टिव एंड एंटायर सोच को मैं नहीं समझ पा रहा। आई विश कि मैं इसको समझ पाऊं। ये जो जमात इस्लामी जो है, आप सुनिएगा, इस बंदे ने आगे जो बड़ा इसको तड़प वाला सवाल किया है। freedoms. Your student leaders have made very provocative statements against media houses and cultural institutions that were attacked last month. Say, for example, For example, okay, Mr. Mostaqur Rahman, he's a Jamaat student wing leader of the Rajshahi University. He said at a rally on the eve of the attacks, we declare that the so-called newspapers, including Prothom Olo and the Daily Star, must be shut down. If any journalist from these papers is present here, they should leave immediately. Another Jamaat student leader who's at the Jahangir Nagar University reportedly said that Chaya Knot and Udichi, these were two cultural institutions that were attacked, must be crushed to achieve Bangladesh's true independence. you have observed these statements, but you did not observe the statement of the party, Jamaat Islami and Islamic Chhatra Shibir. No, I'm asking you for your reaction to this. Yes, we have already given our reaction. सो इनका आप अगर इनकी माइंडसेट देखें ना यार, दे आर वेरी डेंजरस पीपल। इनकी सारी की सारी जो सोच है, वो सोच किससे मिलती है? वो तो तालिबान से मिलती है, तालिबान से मिलती है सोच। सिर्फ इतना बता दें कि इनके और तालिबान के बीच में क्या फर्क रह गया। आपने तालिबान का वर्ल्ड व्यू देखा क्या है? आपने तालिबान की सोच देखी है क्या है? मतलब ये लोग किस तरह अफगानिस्तान बांग्लादेश चलाएंगे, ये किस तरह बांग्लादेश चलाएंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये किस तरह ये सब कुछ चलाएंगे। आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस।
मेरी समझ से बाहर है भाई कि ये किस तरह ये निज़ाम सारे का सारा चलाएंगे। और ये अगर खातून वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, खातून वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, खातून इनकी पार्टी नहीं चला सकती, खातून मुल्क नहीं चला सकती, खातून को ये अपने बराबर ही नहीं समझते, तो ये तालिबान का व्यू नहीं है। फिर तालिबान कहते हैं इनको घरों में बंद करो, ये भी कह रहे हैं घरों में बंद करो, उनका काम तो सिर्फ बच्चे पैदा करना है। कितना दुख है, कितना अफसोस है मुझे इस चीज का कि आप एक 50% जो आपकी 50%, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड वुमन, आपने उसको खत्म ही कर दिया, उसकी हैसियत ही खत्म कर दी है, उसकी जो नेचर है वही खत्म कर दी है, उसका जो सारे का सारा जो अप्रोच है वही खत्म कर दी है। सो शेमफुल, सो शेमफुल। मतलब मैं तो इस चीज को, मैं तो देख के ही हैरान हूं कि हो क्या रहा है। मैं तो इस चीज को देख के हैरान हूं, ये कैसे सरवाइव करेंगे, ये क्या करेंगे यार। ये अगर आपको बांग्लादेश मिल गया, अब आप हसीना वाजिद की जगह आ गए हैं, तो आप अपना माइंडसेट तो देखें ब्रदर, आप अपना माइंडसेट तो देखें। दुख हो रहा है मुझे, बड़ी परेशानी भी हो रही है, दुख हो रहा है और परेशानी भी हो रही है ये जान के कि दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। आई विश के हमारी जो, हम तो सारी बात है इन तालिबान को, अफगानियों को, इनको नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जारी बात है द फ्री प्रेस मस्ट प्रेशराइज देम, द फ्री प्रेस, इनको प्रेशराइज करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाईजान आप किस चक्कर में हैं? आप किस चक्कर में हैं? और आप क्या कर रहे हैं और आप चाहते क्या हैं? तब जाके वी विल बी इन अ पोजीशन कि हमें एक्सप्लेन। और दूसरी बात यह है कि ये वैसे सच्ची बात तो मैं बताऊं, ये तो जितना कम बोलें इनके लिए अच्छा है, ये जितना कम बोलें उनके लिए अच्छा है, जितना कम बोलें, बिकॉज द मोर दे विल स्पीक द मोर दे आर गॉन। जितना कम बोलेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा है, मुझे तो ये नजर आ रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई फाइंड, दिस इज व्हाट आई फाइंड, दिस इज व्हाट आई रियलाइज। और देखते हैं कि ये जनाब जो हैं, जो निज़ाम लेके आना चाहते हैं वो कैसा निज़ाम है, वो कैसी। और दूसरी बात यह है कि इसको इन्होंने जो बात समझाई है सबको कि नहीं 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 नहीं, वो तो हम अगर ऐसे करें ना तो हम, खातून का ये तो काम ही नहीं है, खातून का ये काम ही नहीं है गवर्नमेंट चलाना और गवर्नमेंट बनाना और गवर्नमेंट करना और दिस। बहरहाल मैं तो इसको देख रहा हूँ और मुझे तो बड़ी परेशानी हुई है ये सुन के कि ये इस तरह का सोच रखते हैं। और ये अगर ऐसा ही सोच है, अगर ये ऐसी ही सोच है तो फिर परेशान हो जाना चाहिए, फिर जारी बात है परेशान होना चाहिए कि ये क्या जो है वो करने लगे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, और ये किस तरह कितना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कराते हैं। सुनने में आया कि कल वहाँ पे इलेक्शन की अमनो अमान के हवाले से कोई इजलास हुआ कि वहाँ पे, और उस इजलास में ये शोर मच गया जी आगे पीछे बैठना है और पीछे किसने बैठना है, तो किसी एक शख्स ने वहाँ पे जमात इस्लामी के बंदे को कल कल की मुझे पता बांग्लादेश में कत्ल कर दिया। तो द वायलेंस इज लाइक
Pakistan is having good ties with Bangladesh these days, but that does not mean they don't even take care of what they must take care.